Good morning, students. Welcome you all in the final topic of our enzyme. Actually, the last class of our enzyme, that was the sixth class of enzyme. I was concluding the whole topic, but due to some technical reasons was unable to complete enzyme, as this final topic of our this long enzymes still remains, and that topic is in front of you, that is enzymes, also known as catalytic antibodies. So today we will discuss about what are enzymes and how they are being synthesized. Enzymes are not naturally present inside the cells; they are actually manufactured, or or we can say they are actually created by injecting some foreign substance in the animal body, and that foreign substance is actually an immunogen, which is a transition state analog. So there are some examples of enzymes. So I will take one of the example. So first of all, let's understand what enzymes actually are. Enzymes are transition state analog, in short form TSA, can be used as immunogen to synthesize enzymes or catalytic antibody. And this antibody will be actually monoclonal antibody inside the animal body. So one thing is important about enzymes, that they are created only in animals, not in case of plants. So actually, transition state analog, we know that when the enzyme catalyze a reaction, it first bind to substrate, then that enzyme substrate goes to a transition state that is called as enzyme substrate complex, which is of high energy level and very sensitive. The time period of enzymes, this transition state is very small, and it soon converts into enzymes and product. So there are some, we can use some transition state analog. means ये हुआ कि ऐसे हम सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जो किसी एक एंजाइम के ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है उससे रिलेटेड होंगे स्ट्रक्चरली, और हम उसको एज ए इम्यूनोजन यूज़ करेंगे, या अपन कहें कि एज एन एंटीजन यूज़ करेंगे, और उस एनिमल बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे. जब इसे इंजेक्ट किया जाएगा तो एक एंटीबॉडी प्रिपेयर होगा, एंटीबॉडी जनरेट होगा, और वो एंटीबॉडी एक्चुअली उस एंजाइम जैसा ही होगा और वह एंजाइम जैसा काम कर सकता है. और जब कोई एंटीबॉडी एंजाइम की तरह काम करें या कोई रिएक्शन कैटलाइज करें, तब हम उसे एंजाइम कहेंगे या कैटालिटिक एंटीबॉडी कहेंगे. और ऑब्वियसली चूँकि एंटीबॉडी एनिमल्स ओरिजिन के होते हैं, तो ये एंजाइम्स भी एनिमल ओरिजिन का ही है. सो एक्चुअली एंजाइम्स आर
antibodies which are catalyzing a reaction, कोई रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देखते हैं जिससे आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम्स कैन वर्क एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड एन एंजाइम, दैट इज अ सिमिलरिटी बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड बिटवीन एंजाइम। Suppose, say this is an organism, a particular animal body, and inside that animal, in a particular tissue or in a particular cell, a particular enzyme is catalyzing a very important reaction. This is enzyme and this is the active site of enzyme. Suppose this is the substrate which is actually called as reactant. When it binds to the enzyme, say this is the transition state, enzyme substrate called as ES complex, the transition state, and after transition state enzyme is obtained as such and a new product is being synthesized. So this is the function of an enzyme. Suppose this enzyme is catalyzing a very important reaction in that particular cell or particular tissue, and this reaction is important for survival of the organism. But there are chances, यहाँ पर ऐसे कई सारे चांसेस संभव है कि अगर एंजाइम ये रिएक्शन नहीं कैटलाइज करे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये प्रोडक्ट जो है अपन ये क्या के मान के चल रहे हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से, फॉर सम रीजंस, इफ एंजाइम इज अनेबल टू कैटलाइज द रिएक्शन, व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। व्हेन देयर विल बी नो प्रोडक्ट, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल बी डेफिशिएंट। वो ये जो ऑर्गेनिज्म है इस प्रोडक्ट में के लिए वो डेफिशिएंट होगा। जब डेफिशिएंट होगा तो इट विल शो सम सिम्टम्स और साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके कारण उसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है या एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर ये वाइटल है सर्वाइवल के लिए तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर लीथल होगा। अब वाई एंजाइम is unable to catalyze this reaction? The most important reason behind that is that because we all know that enzymes are actually proteins and proteins are coded by genes. It means उन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया हो और उस म्यूटेशन से एक पॉलीपेप्टाइड बना जिससे उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। जैसे मान लिया कि दिस इज न्यू पॉलीपेप्टाइड, दिस वाज द वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मीन्स द नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड,
when the gene was not mutated, it was actually functional gene. It synthesized such type of polypeptide, and this polypeptide and the structure of this polypeptide is just like that, and in this particular structure it can catalyze the reaction. But due to mutation in the gene, the structure of the polypeptide changes, and when the structure of the polypeptide changes, the function also changes, and now this particular polypeptide is unable to catalyze this reaction. So in such cases, some transition state analogs can be used to generate antibodies inside that organism and that inside that animal, which can catalyze this particular reaction. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये एंजाइम अगर काम करना बंद कर दे या किसी कारण से इसकी जीन म्यूटेशन के कारण ये नॉन फंक्शनल हो जाए, अपन क्या कहेंगे, नाउ इट इज नॉन फंक्शनल, अब ये काम नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे? कई सारी मेथड्स है जिसमें हम क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो एंजाइम सिंथेसाइज भी एक तरीके का मेथड है जिसमें क्या है कि हम ऐसे डिसऑर्डर्स को हम दूर कर सकते हैं, या ऐसे जो अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जैसे मान लिया कि ये सबस्ट्रेट था और ये सबस्ट्रेट जो है अभी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो हम एक ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग लेंगे इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता। वो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग जो होगा वो एनिमल का पार्ट नहीं होगा, इट इज़ नॉट द सेल्फ कंपोनेंट ऑफ द एनिमल, इट इज़ एक्चुअली द नॉन सेल्फ कंपोनेंट ऑफ द एनिमल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग, ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग जो सब्सटेंस है ये इस ट्रांजिशन स्टेट से मिलता जुलता है, इसको हम कह रहे हैं TSA, और ये एक तरह से एंटीजन है। एंटीजन मीन्स इट इज नॉन सेल्फ टू द ऑर्गेनिज्म, ये उस एनिमल का खुद का पार्ट नहीं है, स्वयं का भाग नहीं है, सो वी कैन से इट इज नॉन सेल्फ। अब इस एंटीजन को हम यहां पर इंजेक्ट करें एनिमल बॉडी के अंदर। जब एनिमल बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाएगा तो एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और अगर ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है तब हम इसे कहेंगे इम्यूनोजन। क्या कहेंगे? इम्यूनोजन। इम्यूनोजन मीन्स all immunogens are actually antigens and these immunogens actually generate immune response, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा? एंटीबॉडीज will be synthesized and secreted by the B cells। जो इम्यून रिस्पॉन्स की B cells होती है, इम्यून सिस्टम की जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं B लिम्फोसाइट्स या B cells। तो ये B cells क्या करेंगे? एंटीबॉडीज बनाएंगे और उसको सिक्रेट करेंगे। अब वो उसमें से कुछ एक एंटीबॉडी ऐसा होगा जो कि एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जस्ट लाइक दिस। सपोज एक एंटीबॉडी इस टाइप का जो इसको बिल्कुल बाइंड करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंटीबॉडी हमेशा अपने एंटीजन से बाइंड करेगा, और उस बाइंडिंग साइट को वो उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी और एंजाइम में काफ़ी सिमिलरिटी है। एंजाइम भी एक पॉलीपेप्टाइड है, एक प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंटीबॉडीज आर आल्सो हाईली स्पेसिफिक। The specificity of enzyme lies in their active site, the specificity of antibody lies in its antigen binding site। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो एंटीबॉडी का तो 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट।
ये तो एक H चेन होगी, हैवी चेन, दो तो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। आपस में ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट इज हाईली स्पेसिफिक, इसी तरह से एक्टिव साइट हाईली स्पेसिफिक है। पर इस केस के अंदर ये जो नया एंटीबॉडी सिंथेसाइज हुआ है, इसकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वह बिल्कुल इस एक्टिव साइट से मैच करेगी। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड दिस पर्टिकुलर एक्टिव साइट्स आर सिमिलर। सिमिलर इन सेंस एक जैसी है। एक जैसी का मतलब जैसे मान लिया इस एक्टिव साइट्स की सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, क्योंकि ये प्रोटीन है। सपोज एलेनिन, उसके बाद वेलिन आ रहा है, वेलिन के बाद लाइजीन आ रहा है, सीरीन आ रहा है और थ्रियोनिन आ रहा है। अगर ये सीक्वेंस इस एक्टिव साइट की है तो यही सीक्वेंस इस एंटीजन बाइंडिंग साइट की भी होगी। और मान लिया कि यहाँ पर सीरीन जो है कैटालिटिक ग्रुप है, कि एंजाइम के अंदर ये सीरीन रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो सीरीन इस ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर इस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अब कैसे क्यों करेगा कोशिश? क्योंकि जब ये इसके लिए नॉन सेल्फ हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ये एंटीबॉडी जनरेट हो गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसके लिए नॉन सेल्फ है, तो ये भी स्ट्रक्चर भी एक तरह से उसके लिए नॉन सेल्फ ही होगा और वो इस पर एक्चुअली रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से हमने क्या किया कि जो एंजाइम एबनॉर्मल हो चुका था उसकी जगह हमने एक नया एंटीबॉडी जनरेट कर दिया। वो एंटीबॉडी इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह एंजाइम की जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है बिल्कुल उस एंजाइम की एक्टिव साइट जैसी है, और इसलिए क्योंकि ये भी एक प्रोटीन और ये भी प्रोटीन है तो ये भी इस टाइप की रिएक्शन कैटेलाइज करेगा। अब ये जो एंटीबॉडी है जिसको अब हम एब्जाइम नाम दे रहे हैं, ये इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से कैसे हम जनरेट करें एब्जाइम को? एब्जाइम को जनरेट करना पड़ता है। एब्जाइम्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इनसाइड द एनिमल, दे आर बीइंग क्रिएटेड बाय इंजेक्शन ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंस। सो एक एग्जांपल देखते हैं एब्जाइम का। In a very important reaction in RBCs, metal insertion is an important reaction in red blood cells for the synthesis of heme group। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है RBC के अंदर, हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एलोस्ट्रिक प्रोटीन जिसके 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा सब यूनिट होती है और 2 बीटा सब यूनिट होती है, और हर एक सब यूनिट पर एक हिम ग्रुप अटैच होता है। हिम ग्रुप इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट, वो एक तरह से प्रोस्टेटिक ग्रुप है और उसमें आयरन सेंटर में होता है, और एक्चुअली हिम ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग नेचर, कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है।
और इसी कारण से इसी प्रॉपर्टी, इसी कारण आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ हिम ग्रुप। अब वो हिम ग्रुप के लिए क्या होता है, इनिशियली एक प्रोटोपोरफायरिंग रिंग होती है, प्लेनर रिंग होती है। उस प्लेन रिंग के अंदर आयरन का, दैट इज मेटल का इंसर्शन कराया जाता है। सो दस द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज मेटल इंसर्शन। किस में? ये जो मेटल है आयरन, इसका इंसर्शन किस में कराना है? इस रिंग के अंदर। एंड द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज नॉन एज फेरोचिलेटिनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है इसका नाम है फेरोचिलेटिनेज एंजाइम। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। तो ये दोनों इसके लिए सबस्ट्रेट्स हैं। द रिंग, द प्लेनर रिंग एंड द आयरन्स आर द सबस्ट्रेट, और ये मेटल इंसर्शन कराएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। So during this process, this is the transition state. This is the transition state of the enzyme and the substrates. ठीक है, ये substrates हैं। पहले एंजाइम इनसे बाइंड होगा, फिर उसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट में आएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर वो एंजाइम रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा और अल्टीमेटली एक हिम ग्रुप बन जाएगा। This is the heme group which is ready to be incorporated in globin protein. Globin protein में प्रोटीन्स में इसको incorporate किया जाएगा। That is different. बट इस एंजाइम का काम क्या है? फेरोचिलेटिनेज का मेटल इंसर्शन, और मेटल इंसर्शन होगा तभी हिम ग्रुप बनेगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन in that animal and in all the cells of RBCs. बट सपोज किसी कारण से फेरोचिलेटिनेज अगर ये रिएक्शन कैटलाइज करना बंद कर दे, कारण हो सकता है कि ये फेरोचिलेटिनेज नॉन फंक्शनल हो जाए। हो सकता है वो म्यूटेशन के कारण हो, म्यूटेशन इन इट्स जीन जो कि फेरोचिलेटिनेज एंजाइम बना रहा है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो फिर एक नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा। वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा तो ये रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगी और हिम ग्रुप नहीं बनेगा। हिम ग्रुप नहीं बनेगा तो आरबीसीज के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होगी, एंड दैट एनिमल विल बी एनिमल, है ना, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि क्यों ना हम एक एंजाइम जनरेट कर दें जो कि बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन कैटलाइज करे। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग यूज़ किया गया। उस ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग का नाम है मेथिल पोरफायरिन। मेथिल सो ये जो मेथिल पोरफायरिन है ये एक ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट का जो ये स्ट्रक्चर है पोरफायरिन और आयरन का, उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। इसको इंजेक्ट किया जाएगा इन द एनिमल बॉडी। तो एक तरह से ये क्या एंटीजन है, जस्ट लाइक दिस। इसके पास इनफ मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकें या एक्टिवेट कर सकें, और इम्यून रिस्पॉन्स अगर एक्टिवेट हुआ तब इसको हम कहेंगे इम्यूनोजन। सो नाउ दिस मेथिल पोरफायरिन इज एक्चुअली एक्टिंग एज इम्यूनोजन। तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होंगे। आरबीसीज जो है वो एंटीबॉडी डेवलप करेगी, बी सेल्स जो है उसने एंटीबॉडी जनरेट करी और वो एंटीबॉडी कुछ इस टाइप की होगी।
क्योंकि उसकी ये उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी. दिस इज दैट एंटीबॉडी एंड दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. Now this antigen binding site is similar to the active site of this ferrochelatoinase enzyme. ये उसकी जैसी होगी. जो इसकी यहाँ पर अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी, सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस इस एंटीबॉडी की भी होगी. और इसी कारण से अब ये जो एंटीबॉडी जनरेट हुई है उसे हम एब्जाइम कहेंगे. और ये एब्जाइम मेटल इंसर्शन कर सकता है एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ हिम ग्रुप. ये जो एब्जाइम है कैटालिटिक एंटीबॉडी, इसलिए इसका नाम दिया गया कैटालिटिक एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी अब कैटालिसिस कर रही है, ये इस हिम ग्रुप का सिंथेसाइज कर रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जाइम्स एंड विद दिस टॉपिक आई कंक्लूड द एंजाइम portion of your syllabus. So it was a longer journey for the completion of this enzyme. Actually I have taken 7 classes to complete the enzyme, but I hope that in these 7 classes you have understand the very basics of the enzymes. What are enzymes? What is the definition of enzyme? What are the properties of the enzymes? How enzymes can be classified traditionally as well as in modern system. It can be categorized into 6 classes as according to the International Union of Biochemistry. We had studied the thermodynamic aspect of the enzyme functioning, that is mechanism of enzyme action. We had studied the structure of active sites, the function of the active sites. We had gone through the kinetics of enzymes, how the enzyme can catalyze the reactions, and on the basis of kinetics we can categorize the reactions as a zero order or a single order, second order or third order reactions. We had focused on the Michaelis-Menten kinetics of enzymes. We had to compare the allosteric enzymes with the non-allosteric enzymes, the kinetic properties of the allosteric enzymes as well as non-allosteric enzymes, the cooperative behavior of the allosteric enzymes. We had studied the different type of enzyme inhibitions and different type of enzymes like isozymes, zymozymes, alloenzymes and abzymes. So from next class we will take a different topic as per your syllabus. Thank you.